Good morning, students. Today we will start our next topic, that is division of decimals. So, as we have studied till now multiplication of divisions, so let us start with division. First topic in division of decimal is you have to multiply any decimal number by 10, 100, 1000 and so on. So what is the basic method to solve these type of questions? Let us say first example is, if you are having a number 31.5 and you have to divide it by 10. So how can you do it? Let us see here. If you are having 31.5, so you can write 31.5 as 315 divided by 10, because decimal के बाद एक digit है 5, so we have written here 10 divided by 10. And as I have told you that how to divide any fraction by any whole number, what you have to do, you have to write 135 upon 10 as it is, and what you have to do now, you have to replace this division sign by multiplication, and then you have to write the reciprocal of divisor. Here divisor is 10, so now you have to do its reciprocal. Reciprocal कैसे करेंगे? अगर कोई नंबर 10 गिवन है तो 10 का मतलब क्या होगा? 10 डिवाइड बाई 1. ओके, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये जो नंबर है 10 डिवाइड बाई 1, इसको उल्टा करके लिखना. उल्टा कैसे करोगे इसको? 1 अपॉन 10. So now what we are having? We are having 315 into 1 divided by 10 into 10. So what we can write? 315 divided by 10 into 10. That means you can also write it as, I am writing it here, you can write it as 315 divided by 100. Now it is given denominator में 100 है, that means decimal के बाद 2 digits होने चाहिए. So starting from the last you can see 1 and 2. इसका मतलब 2 digit last से 2 digit पहले decimal लगेगा. So we can say decimal will be 3.15. So this will be our answer if you divide 3.15 by 10. So note it down by pausing the video. I am erasing it from here. 3.15 is the answer. Now moving on to second example, that is if you divide 31.5 by 100, then what will you get? See here, 31.5 can be written as 315 डिवाइड बाय 10, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिवाइडेड बाय 100. और डिवाइड को हटा के मल्टीप्लिकेशंस का साइन लगाना है, और 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 बाई 1. सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई 100. उसको हमने इसकी वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया, चेंज कर दिया. सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग 315 डिवाइड बाय 1000. इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स डेसिमल 3 से पहले आएगा. सो वी कैन राइट इट एज 0.315. सो व्हाट इज द आंसर हेयर? वी कैन राइट इट एज 0.315. Okay, now moving on to our next example. If you have to divide 31.5 by 1000, then what you have to do? What you will do, you will write 31.5 as 315 by 10 divide by 1000. Similarly डिवाइड को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 1000 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1 अपॉन 1000. So now what we are having here, 315 divided by 1, 2, 3, 4. So now you can see denominator we are having 4 zeros, that means after decimal there should be 4 digits. So starting from last 1, 2 and 3, you can see here we are having only 3 digits, but according to denominator 4 zeros are there, so decimal के बाद 4 digits होने चाहिए. लेकिन numerator में 3 digits हैं, तो हम क्या करेंगे? Starting from last, how will we write it as? See here, you will write 5, 1, 3, that is 315 as it is. Starting from last 1, 2, 3, you are having 3 digits, लेकिन decimal के बाद 4 होना चाहिए, so you will write 1 0 more after decimal.
So this will be our answer, that is 0.0315. सी यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर 4 ज़ीरो हैं तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते 0.3150, दिस विल बी रॉन्ग मेथड। इसको हमेशा स्टार्ट लास्ट से करना, पहले 5 इधर लिखना, फिर 1, फिर 3, फिर देखना अगर एक डिजिट और लगाना है तो तुम स्टार्टिंग में 0 लगाना है, लास्ट में 0 कभी नहीं लगाना। सो दिस वॉज द डिविजन ऑफ 315 by 10, 100 and 1000. Now there is one thing in common between these three division. What is this? Let us see. As you have if you remember that in multiplication I have told you that if you multiply any number by 10, so वो जो decimal place है वो shift होगा right में। क्या पढ़ा था पहले? See here, अगर तुम 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा जितनी यहाँ पे 0 होंगी। अगर एक 0 है तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट होगा राइट में, तो आंसर कितना होगा 12.0। लेकिन अगर डिवीजन का केस है तो उसमें देखो क्या होगा, अगर नंबर है 12 डिवाइड बाय 10, सो डेसिमल के केस में क्या होगा, वो जो डेसिमल है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, डिवीजन में डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितना, जितनी जीरोज होंगी। नाउ 1.2 डिवाइड बाय 10, यू आर हैविंग हेयर 1 0, इसका मतलब डेसिमल लेफ्ट में एक प्लेस शिफ्ट होगा। तो जब डेसिमल यहाँ आएगा, दैट इज़ 1 के आगे आएगा, तो डेसिमल क्या होगा 0.12। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मेथड बाय द examples we have done here. First example is 31.5 divided by 10. अगर हम इस मेथड को इसमें लगा के देखें तो लेट अस सी कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 0 में 1। सो इसका मतलब 31.5 अगर डिवाइड बाय 10 है, यहाँ पे एक 0 है, तो ये डेसिमल प्लेस एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। सो आंसर कितना होगा 3.15। सो दिस इज़ आवर सेम आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या था, उसको हमने 100 से डिवाइड किया है। नाउ इफ़ यू डिवाइड 31.5 बाय 100, यहाँ पे 2 0 हैं, इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा किधर, लेफ्ट में। 31.5 दो डिजिट्स लेफ्ट में, इसका मतलब एक डिजिट होगा तो यहाँ आएगा, सेकंड में यहाँ आएगा, कहाँ पे आ गया 3 के आगे। सो व्हाट इज़ द आंसर 0.315। नाउ लेट अस सी इफ़ वी डिवाइड इट बाय 1000, व्हाट विल हैपन। 1000 के केस में यू कैन सी वी आर हैविंग here 3 zeros, सो डेसिमल विल शिफ्ट टू 3 डिजिट्स ऑन द लेफ्ट। सो लेफ्ट में अगर 3 डिजिट्स होगा 31.5, यहाँ पे डेसिमल है, अगर लेफ्ट में ये शिफ्ट होगा तो देखो पहला शिफ्ट किधर होगा, इधर, मतलब 1 से पहले। सेकंड शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में इधर आएगा, सेकंड में इधर, और थर्ड शिफ्ट में कोई एक थर्ड नंबर और होना चाहिए जिससे आगे डेसिमल शिफ्ट होगा, लेकिन थर्ड नंबर तो कोई है नहीं। सो व्हाट विल वी डू, वी विल प्लेस at the place of third number 0, so that our answer is 0.0315. okay, what we have done here, 1000 में 3 0 था, तो हमने यहाँ से डेसिमल को 1 2 और 3 प्लेस शिफ्ट करना है, और यहाँ पे 3 प्लेस पे कुछ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। I hope this is clear to you. So if you have not noted it down, kindly pause the video and rewind the video to note it. So these are the two methods कि तुम किसी नंबर को 10 से कैसे डिवाइड कर सकते हो, 100 से कैसे कर सकते हो। ये दो मेथड हैं। ये जो सेकंड मेथड है ये सिंपल मेथड है, जस्ट शॉर्टकट मेथड यू कैन सी। 3 0 है तो डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू राइट इट इन योर ब्रैकेट नोटबुक दैट द डेसिमल प्लेस विल shift to left in case of division, okay, and to right in case of multiplication. You have to note it in your notebook. Moving on, next topic is you have to now the topic is division of decimals by a whole number. If you are having any whole number, like first example is 6.4 divided by 2, so how will you solve it?
व्हाट यू हैव टू डू, 6.4 को 64/10 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2। सो इफ़ डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज, और 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2। नाउ व्हाट इज़ गिवन, 64 इंटू 1 कितना होगा, 64, 10 इंटू 2 कितना होगा, 20। लेकिन इसको करने का एक और सिंपल मेथड है, लेट अस सी हियर। अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो इजी रहेगा, बिकॉज उसमें हमें सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ पे 10 इंटू 2 कितना होगा, 20, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना सिंपल फॉर्म में चेंज कर दें कि यहाँ पे सिर्फ 10 बचे। हाउ कैन वी सॉल्व इट, देखो इधर कितना है, 64। व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन, 64 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, दिस इज वी आर हैविंग हेयर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, you have to keep in mind one thing, अगर कोई नंबर है 2/4 इंटू 8/6, दिस इज नंबर यू कैन से, कभी भी दो फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं सो उसको डिवाइड करने का एक मेथड देखो इधर, यू कैन कट एनी नंबर लाइक दिस और इन क्रॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 को 2 से कट कर सकते हो, और वी कैन से डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी दो नंबर को डिवाइड करने के लिए या तो हमें वर्टिकल जाना है या फिर क्रॉस में जाना है। हॉरिजॉन्टल कभी भी कट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 और 8 यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं। सो यू कैन नॉट कट 2/8 एट 4, you cannot cut it like this. what you have to do, you have to follow this rule, या तो ऐसे जाना है या फिर क्रॉस में जाना है। क्रॉस में कैसे, you can see 2 3 ज़ा 6, तो हम यहाँ पे क्रॉस में गए हैं, ओके। और 4 2 ज़ा 8, सो हमने 4 को 8 पे 2 पे कट किया है, ठीक है। what we have done, we are having 2/4 इंटू 8/6। what we have done here, हमने 2 को 6 पे कट 6 को 2 से कट किया है एंड 8 को 4 पे कट किया है, क्यों, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे हमारा वो क्या है, सिस्टम क्या है, हमने क्रॉस में कट किया है, क्रॉस में डिवाइड किया है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लाइक 2 2 ज़ा 4, फिर उसको हम क्रॉस में कर सकते हैं 2 4 ज़ा 8, फिर से हम उसको 2 से कट कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड दैट द मेथड शुड बी लाइक दिस, या तो वर्टिकल हो या फिर ऐसे क्रॉस में हो। हम इसको कभी भी ऐसे करके कट नहीं कर सकते, लाइक 2/4 इंटू 8/6, 2 से हम 8 को हम 2 से कट नहीं कर सकते, दिस विल बी रॉन्ग, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन इज 6.4 डिवाइडेड बाई 2। 6.4 को कैसे लिखेंगे, 64/10 इंटू 1/2, यहाँ तक हमने किया था पहले। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, एज यू कैन सी 64 कम्स इन द टेबल ऑफ 2, ओके, 64 कम इन द टेबल ऑफ 2। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, वी कैन कट 64/2, दैट इज 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, 32 डिवाइड बाई 10। सो अगर डिवाइड बाय 1 0 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा, दैट इज 3.2 इज आवर आंसर। काइंडली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी प्रॉपरली, you may take some time, you may rewind the video and watch it again. Moving on to you note down this is the answer. Moving on to second example. Second example is, if you are having 12.96 divided by 4, so what you can do here, you will write 12.96 as 1296 by 100, because यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड बाय 4 को कैसे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1/4। नाउ यू कैन सी, कैन यू टेल मी दैट इफ 1296 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। पहली बात, 400 को 4 से कट नहीं कर सकते, बिकॉज ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल मेथड है, इसको हम यूज़ नहीं करते, ये गलत है। हमें क्या करना है, या तो वर्टिकल या फिर क्रॉस, ओके। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट, नाउ यू हैव टू सी
if you can divide 1296 by 4 or not. 4 3s are 12, remainder 0. 4 2s are 9, remainder 1. 4 4s are 16. So what is remaining here? 324. So what we are left with, that is 324 divided by 100. अगर किसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स. सो व्हाट वी कैन राइट हेयर? 3.24. 3.24 इज द आंसर. दैट इज 3.24. 1 2 2 डिजिट, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो आंसर कितना होगा? 3.24. मूविंग ऑन. Next topic is if you divide two decimals. So first example is you are having 25.5. कैसे लिखेंगे? 255 by 10 divided by 5 upon 10. So यहाँ पे क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. डिवीजन को मल्टीप्लाई से चेंज किया. 5 upon 10 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 10 upon 5. उसी को हमने उल्टा करके लिख दिया. Now you can see from here how can we divide it. डिनोमिनेटर में अगर तुम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में 50 होगा. किसी भी नंबर को 50 से डिवाइड करोगे डिफ़िकल्ट होगा. सो हमें क्या करना है? हमें पहले देखना है कि क्या कुछ ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है दो टेबल में. सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट 255 कम्स इन द टेबल ऑफ 5 बिकॉज किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा. सो वी कैन कट इट ईजिली. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. सो व्हाट इज़ द आंसर? और यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है. क्रॉस में हम डिवाइड कर सकते हैं. सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 10 इज़ 1. सो व्हाट इज़ द आंसर? 51 इंटू 1 इज़ 51. मूविंग ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल. इसमें हमने क्या किया? देखो इधर 255 बाई 10 इंटू 10 अपॉन 5. ये कितने पे आएगा? 51. 10 से 10 कैंसिल, कितना बचेगा? 51. सो दिस इज़ आवर आंसर. मूविंग ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज़ 27 बाय 0.03. You can write 27 as it is. Divide by 0.03 is 3 upon 100. Okay, this is 3 upon 100. Now how can you solve it? You will replace division by multiplication and reciprocal of 3 upon 100 will be 100 upon 3. So as you can see here, 27 comes in the table of 3, that is cross division. So 3 9s are 27. What is our answer? 9 into 100 is 900. So this is the answer of second example. I think all these three methods you understand properly. If you do not understand it, kindly rewind the video, note it down, and then from your notebook you will understand it better. Now moving on. Based on these examples, here are some questions of exercise 2.7. Question number 1 is very simple. What you have to do, you have to divide every sub part by simple whole number. So let us see first example. 0.4 divide by 2. कैसे लिखेंगे इसको? 4 upon 10 divide by 2 upon 1. So 4 upon 10 into इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 2 upon 1 का 1 upon 2. So 2 2s are 4. So our what is the final answer? 2 by 10. So 2 by 10 क्या होगा? 0.2. Similarly you have to do all the sub parts of question number 1. Moving on to question number 2. Question number 2, let us see sixth part, that is 0.56 divide by 10. So अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा? 1. और किधर होगा? लेफ्ट में. सो वी कैन से कि ये डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. कितना आ जाएगा? 0.056. इसका मतलब ये डेसिमल यहाँ से उठ के 0 के आगे आ गया, 0 से आगे डेसिमल आ गया. या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 56 अपॉन 100 डिवाइड बाई 10. सो डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया और 10 को 1 अपॉन 10. सो नाउ यू कैन सी डिनोमिनेटर में 3 0 हैं, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद
3 डिजिट्स होंगे 0.056. ओके, so based on this you have to solve question number 2 also. So your homework is question number 1 and 2, and you complete your notebook till question number 2 of exercise 2.7 along with all these questions that have been solved in the video. Keep practicing and thank you.